Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 5th science, chapter number 7, that is about states of matter. Students, as we all know, that every particular object which is surrounding us, that is known as matter. Why? Because matter is anything which has mass and which occupies space. So, therefore, almost everything which is around you, that is matter only. All right. And matter exists in three states. And in this session today, we are going to cover all of these three states of matter. So, we will learn about, first of all, that what is matter made up of. Secondly, we will learn the properties of matter, states of matter, arrangement of molecules, and then we will learn about mixture. First of all, they have asked you to write S for solid, L for liquid, and G for gas. So, यहाँ पे different objects given है आपको या different matter given है हमें इन्हें identify करना है and we have to write S for the solid state of matter, L for the liquid state of matter, and G for the gaseous state of matter. So, first picture you can see this is ice and ice is the solid state of matter. Second, we have milk. Milk क्या है? Liquid state of matter है. Third, balloon filled with air. And air क्या है? It is a gaseous state of matter. Then juice, again a liquid state of matter. Candle, which is a solid state of matter. And chair is again a solid state of matter. So there are many objects around us. As I told you, बहुत सारे objects हमारे surroundings में होते हैं. They have different sizes. सभी object के different size, shape, color and texture है. So describing objects by using object properties like. So अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? Objects को describe करेंगे. Object की properties को basis consider करते हुए. ठीक है, जैसे कि हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है रिगार्डिंग इट्स साइज, शेप, कलर एंड टेक्सचर. ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑब्जेक्ट लुक्स. प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, कैसा होता है. तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही उसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट? So in this, first of all, we have properties of all objects. सभी objects की properties क्या होती है? First of all, we have the property that objects occupy space. Objects जो है space occupy करते हैं. ठीक है? All objects occupy space. जैसे कि your computer, आपका computer जो आपकी desk पे रखा है, that also takes up the space on the desk. ठीक है, यू टेक अप स्पेस ऑन द चेयर. जब आप खुद क्या करते हैं, चेयर पे हम बैठते हैं तो हम चेयर के स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाइज स्पेस. सेकेंड, वी हैव व्हाट ऑब्जेक्ट्स हैव मास. ऑब्जेक्ट्स का मास भी होता है ना. व्हाट इज मास? मास इज रिलेटेड टू हाउ मच समथिंग वेट्स. ठीक है, मास किससे रिलेटेड है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है कितना उसका वेट है, कितना भारी या कितना हल्का है वो, हाउ हेवी और light it is, that is known as mass. And the unit of mass, mass की जो unit होती है, that is gram. And its bigger unit, mass की जो बड़ी unit है, that is kilogram, kg. And mass and weight are two different things. Very important students कि mass and weight दो different things है, but there is something interrelationship between these two quantities. ठीक है, कहीं ना कहीं आपस में related है, but still they are two different things. So hence objects that take up space, ऐसे objects जो space occupy करते हैं and which have mass, जिनके पास mass होता है, they are called matter. As I told you in the starting only कि कोई भी एक particular object जिसका mass होता है, जो space occupy करता है, that is matter. Now everything around us, हर एक चीज जो हमारे सराउंडिंग में है वो मैटर से ही बनी है. ठीक है, हमारी बॉडी भी मैटर से बनी है. एंड मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू, दैट इज चेयर. चेयर एक सॉलिड स्टेट है, वाटर लिक्विड है एंड ऑक्सीजन इज गैस. Now what is matter made up of? अब मैटर किसका बना है स्टूडेंट? तो मैटर जो है, डिफरेंट मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, हर एक पर्टिकुलर मैटर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. एंड ऑल द मैटर, सभी मैटर को स्प्लिट किया जा सकता है इनटू टिनी यूनिट्स, छोटी छोटी सी यूनिट्स में, जो कि हमारी नेकेड आइज को विजिबल नहीं होती है. These tiny units, I mean जो tiny units है which are not visible to us, that is known as molecules.
मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी एक सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, उसे आप मॉलिक्यूल कहोगे। उसके अंदर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल क्या है? शुगर मॉलिक्यूल आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया शुगर का। एंड ईच शुगर मॉलिक्यूल, हर एक शुगर मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या होगा? शुगर की सारी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैटर, सॉरी एटम्स। मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं? एटम्स के बने हैं। ठीक है, मैटर बना था मॉलिक्यूल का एंड मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम्स के। सो मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रेकन डाउन। एज आई टोल्ड यू कि मॉलिक्यूल को फर्दर जब आप ब्रेक करेंगे तो उसमें से और कुछ स्मॉलर यूनिट्स निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एटम्स। सो वी कैन से कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है दैट इज एटम ओनली। ऑल काइंड ऑफ मैटर, इस वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मैटर है वो सभी अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बने। एंड वो एटम जो सेम काइंड के होते हैं दैट फॉर्म्स एलिमेंट। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। सेम टाइप के एटम्स होके बनाएंगे एलिमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कंबाइन होके बनाते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। सॉल्ट जो है आपका 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना है, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, सोडियम के एटम एंड क्लोरीन के एटम मिलाकर बनता है सॉल्ट का एटम। सॉल्ट इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉल्ट एक मॉलिक्यूल हो गया जो कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से, यानी कि सोडियम एटम एंड द अदर इज क्लोरीन एटम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो द मेजरमेंट ऑफ मास एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मास एंड जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका जो मेजरमेंट है, जिसे आप देख सकते हो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, वो क्या होती है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि व्हेन यू लुक एट ऑरेंजेस, जब आप ऑरेंजेस को देखो तो आपको पता है कि वो ऑरेंजेस है। क्यों? बिकॉज आपको उनका कलर पता है, शेप पता है, स्मेल पता है। यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑरेंज, राइट? सो मास, कलर, शेप, वॉल्यूम। ठीक है, मास, कलर, शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये सभी क्या है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। नाउ नेक्स्ट यू हैव द टॉपिक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? इट इज अ टेम्पररी चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स। एक ऐसा चेंज जो टेम्पररी होता है, ठीक है, एंड आप उसको रिवर्स कर सकते हो, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। Whereas we have chemical properties now. So chemical properties कौन सी होती हैं? Which can only be observed by changing the identity of that substance. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी को आप तभी ऑब्जर्व करेंगे जब आप उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पीस को आपने बर्न किया तो वो एक ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। एंड आफ्टर द फ्लेम गेट्स ऑफ, जैसे ही फ्लेम आपकी क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी। नाउ यू कैन नॉट लॉन्गर फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। अब आप उसके बाद और उससे ज्यादा न्यू सब्सटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है ऑफ दैट कैंडल। Now what is chemical change? Chemical change is a permanent change. See, physical change temporary change था, लेकिन chemical change permanent changes होते हैं which cannot be reversed, जिन्हें हम reverse नहीं कर सकते हैं, and thus results in the formation of a new substance. And एक chemical change के बाद हमेशा एक new substance का formation होता है which cannot be reversed into its original form. Alright? चलो. Now we have the topic states of matter, and matter generally कितनी 3 states में exist करता है, that is solid, liquid and gas. So first of all we have solid. Solid क्या होता है? Solid एक ऐसा state of matter है which has a definite shape and size. ठीक है, definite means fixed. तो solid जो होता है, solid की एक fixed shape होती है, fixed size होता है, एक mass उसका fixed होता है, it occupies space. भाई matter है तो matter तो space भी occupy करेगा and उसका mass भी होगा. Doesn't matter if it is a solid, liquid or gas. एग्जाम्पल है सॉलिड्स के यहाँ पे, दैट इज कंप्यूटर, डेस्क, स्टोन, टेबल, कार एक्सेट्रा। दीज आर ऑल द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? लिक्विड। लिक्विड क्या है स्टूडेंट? लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट एक डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में पोर करोगे इट विल टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर ओनली। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, आप उन्हें पोर कर सकते हो, लिक्विड स्पिल किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क, ये आपके लिक्विड्स के एग्जाम्पल है।
सी दे हैव गिवन यू एग्जांपल हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल्क को बॉईल कर रहे हैं पॉट में। तो यहाँ जो मिल्क है स्टूडेंट्स वो लिक्विड हो गया, वो पॉट जिसमें आप मिल्क को बॉईल कर रहे हैं दैट इज सॉलिड, एंड उसके बॉइलिंग के वजह से जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज गैस। ऑलराइट, दे हैव गिवन यू, ये पॉट आपका सॉलिड हो गया, मिल्क आपका लिक्विड है, एंड ये जो वेपर्स निकल रहे हैं दैट इज द गैस। अमेजिंग फैक्ट दैट साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन वुड। साउंड वेव्स जो है वुड में फास्टली ट्रैवल करते हैं एज कंपेयर टू एयर और वाटर। व्हाई? बिकॉज वुड आपका सॉलिड है ना, एंड जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से दे बम्प इनटू ईच अदर क्विकली, एक दूसरे में बम्प बहुत इजीली करते हैं, एंड साउंड जो है फास्टली ट्रैवल करती है इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। Now third we have gases. So run for 5 minutes. What they're saying is कि आपको 5 मिनट रन करना है, भागना है. Now do you notice how fast you are breathing? उसके बाद अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आप बहुत फास्टली ब्रीथ कर रहे हो. So what you are breathing is, अब एक्चुअल में जो आप ब्रीथ कर रहे हो इस टाइम पे दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन, एंड वी नीड ऑक्सीजन टू लिव. So that's why you can hold your breath only for a certain amount of time. इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करें यानी कि सांस को रोक कर रखें, तो वो कुछ फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि बहुत कुछ सर्टेन सेकंड्स के लिए आप ऐसा कर पाएंगे, बिकॉज हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए, जो कि हम अपने एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं. ठीक है, यू कैन नॉट सी ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को देख नहीं सकते बिकॉज ऑक्सीजन एक गैस है, एंड गैस आपकी इनविजिबल होती है. Alright, gas is a matter that has no shape or size of its own. So gas एक ऐसी state of matter है जिसका ना तो खुद का अपना कोई shape होता है ना ही कोई size होता है. There are some substances, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ substances है like water, ठीक है, which can change their state from one form to another. Water जो है student बहुत easily अपनी एक form से दूसरी form में change किया जा सकता है. They have given you the change of state of water. यहाँ पे क्या है आपके पास, ice था. ice क्या है, solid state of matter है. आपने आइस को हीट प्रोवाइड करा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. ऑलराइट, फिर उसके बाद आपने इसे क्या करा, और हीट प्रोवाइड करी लिक्विड को, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया विच इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. फिर उसके बाद अगर आप वेपर को कूल करते हैं यानी कि कंडेंस करते हैं, तो वो लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड अगर वाटर को फ्रीज कर दिया जाए यानी कि लिक्विड स्टेट को फ्रीज कर दिया जाए, तो इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट दैट इज आइस. ऑलराइट, नाउ वी हैव द टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट रहता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, दे नेवर स्टॉप मूविंग. मॉलिक्यूल्स जो हमेशा किसी भी मैटर के अंदर स्टूडेंट्स हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं. सो इन सॉलिड्स में बात करें तो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, आप इन्हें प्रेस नहीं कर सकते हैं, एंड ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ग्रेट फोर्स. देयरफॉर इसीलिए सॉलिड जो है रिलेटिवली काफी रिजिड होता है, और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है. सेकेंड वी हैव लिक्विड्स. लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स है काफी वाइडली स्पेस्ड है, यानी कि इनमें काफी स्पेस होता है, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड. ठीक है, एंड जो अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी लेस है एज कंपेयर टू सॉलिड. मॉलिक्यूल्स एक लिक्विड्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई लिक्विड्स कैन फ्लो. दे आर एबल टू चेंज देयर शेप. लिक्विड्स की हम शेप चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड्स अपने आप अपनी शेप चेंज कर लेते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो. ऑलराइट, एंड ऑल्सो लिक्विड्स जो है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड्स को पोर करते हो, लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. Now let's talk about gases. So gases में molecules are very loosely packed. ठीक है, gases के अंदर जो molecules होता है they can freely move, easily move कर सकते हैं, and gases के molecules और ज़्यादा faster rate पे move करते हैं as compared to the molecules in a solid or a liquid. And that is why gases की ना तो कोई definite shape है और ना ही कोई definite volume. Now we have the topic mixture. What is it? Mixture are a combination of two or more substances that are not chemically united and do not exist in fixed proportion to each other. Mixture क्या है? Two or more substances का combination है जो कि chemically bounded नहीं है, यानी कि chemically एक दूसरे के साथ combine नहीं हुए हैं, and ना ही एक दूसरे के साथ fixed proportion में मिलाए जाते हैं. But still they are a combination of a two or more substances.
Most natural substances, ज़्यादातर जितने भी natural substances are students, they are mixture only. For example, water, milk, ये सभी mixture है. And mixture को further two types में divide किया जाता है. That is homogeneous, other is heterogeneous. Homogeneous mixture कौन से होता है जिसपे जो mixture का composition है वो uniform होता है throughout the mixture. ठीक है. And ज़्यादातर जो homogeneous mixtures है, they are commonly referred to as solution. उनको हम commonly solution के नाम से जानते हैं. Now, if we talk about heterogeneous mixture, तो heterogeneous mixture का जो composition है, that is not uniform. ये uniform नहीं होता है. Now, what is solution? Solution is a mixture of two or more substances, right? At least two substances. कम से कम दो substances को mix करना जरूरी है एक solution बनाने के लिए. ठीक है. द सब्सटेंस इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट. अब जैसे कि आपने दो सब्सटेंस को मिलाकर सोल्यूशन बनाया है तो वो सब्सटेंस जो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर, है ना, एंड डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. बट द सब्सटेंस विच इज इन द लार्जर अमाउंट, वो सब्सटेंस जो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एंड जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट इंस्टेंटेड वाटर इज नीडेड द सॉल्वेंट. व्हाट दे आर सेइंग कि ज्यादातर इंस्टेंसेस में अगर देखा जाए तो वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है. ठीक है. एंड जो गैसेस, लिक्विड्स या सॉलिड्स आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, दे विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्यूट. राइट. चलो, नाउ वी हैव द टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि जब आप लिक्विड और लिक्विड्स को कंबाइन करते हैं, सो उससे भी एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है. फॉर एग्जांपल, वाइन एंड विनेगर. देन सॉलिड एंड लिक्विड्स को भी आप कंबाइन करके बना सकते हो, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन. देन गैस एंड गैसेस को कंबाइन करके बनता है कार्बोनेटेड वाटर, वाटर वेपर एलियन. देन गैस एंड गैस को अगेन मिला के एयर भी बनती है. एंड सॉलिड सॉलिड्स को मिला के क्या बनता है, मिक्सचर नोन एज एलॉय. नाउ हाउ इज सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल गिवन है, यू हैव टू टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर. एक बीकर आपने लिया, उसमें वाटर फिल्ड होना चाहिए. फिर उसके बाद पुट सम शुगर इन इट, थोड़ा उसमें आप शुगर डालेंगे, शुगर आपकी डिसॉल्व हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन अ पैटर्न एंड मॉलिक्यूल्स इन वाटर आर लूजली पैक्ड. Some spaces exist between the molecules of water, and when we put sugar in it, the sugar molecules take the empty space that exists between the water molecules. All right. And water molecules also fill the empty space of sugar, and this results in the formation of a solution. This process continues till empty spaces are completely filled. Very simple. What they're saying कि जब आपने क्या करा, एक बीकर लिया वाटर से फिल्ड, उसमें आपने शुगर डाला, शुगर आपकी थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाएगी when you will stir it. So where does that sugar has been disappeared? एक्चुअल में as we know कि वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है. लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. तो जब आपने शुगर को उस लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में डिसॉल्व किया, तो शुगर ने उस एम्प्टी स्पेसेस को विच वाज देयर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, उस स्पेस को शुगर के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर दिया. एंड उसके बाद क्या होगा, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली शुगर ने उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है जो वाटर में था, प्रेजेंट था, and thus the sugar has been dissolved and it has been disappeared from their solution. So इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तैयार होता है. ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक उस सॉल्वेंट में जो एम्प्टी स्पेसेस थे वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाते हैं. Now let us recall the chapter. So as we all know that all objects take up space. सभी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट टेक अप स्पेस, वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड इनका मास भी होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. ठीक है. मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है विच एग्जिबिट्स ऑल इट्स प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ द सेम काइंड, वो एटम्स जो एक जैसे होते हैं वो एलिमेंट्स बनाते हैं. राइट. फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है? टेम्पररी चेंज होता है. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इन लिक्विड्स, लिक्विड्स पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लेस क्लोजली पैक्ड. ठीक है, एज कंपेयर टू गैसेस, सॉरी सॉलिड्स. देन गैसेस में मॉलिक्यूल्स आपके बहुत ज्यादा लूज पैक्ड होते हैं. So the chapter is completed over here. This was all about the different states of matter, their composition, and also the properties of the molecules. All right.
I hope you must have understood the chapter. You must have understood the concept of mixture, arrays, different types also. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, and thanks to all.